Good morning, everyone. We will start at 10:35. Okay. Okay. Good morning, everyone. Yesterday we were doing reference electrode, correct? एक मिनट, मैं just open करती हूँ पेज मेरा अपने. You have to start with standard hydrogen electrode, right? Okay. Yes. Okay. Just a minute.
standard hydrogen electrode. Okay, it is SHE, standard hydrogen electrode. Now, first of all, you should see the diagram, what exactly it is. So, there is a beaker. मैं बहुत ही ऐसे सिंपल वाला बना रही हूँ. Proper diagram you can draw from your textbook. ठीक है? There is a beaker. In this, we will take one platinum wire. This is my platinum wire. Okay. Then after that, we will take here थोड़ा सा ऐसे cover कर देंगे with glass. This is the platinum wire. Here, it is called as platinized platinum plate. ये जो plate है, it is called as platinized platinum plate. Then after that, we will put one glass jacket. ठीक है, this is your glass jacket. ठीक है. Then after that, we will take in this 1 molar H plus ion solution. मैंने बहुत ही बेसिक बनाया है, कि बहुत ज्यादा एकदम लिखा हुआ है वो आपके टेक्स्ट बुक में से ड्रॉ करो. Here I am going to insert और ये क्या बोलते हैं bubble, dry and pure hydrogen gas which is maintained at 1 atmospheric pressure. ठीक है, डायग्राम समझ आ गया, एकदम सिंपल था. We will have to take a platinum wire. कॉपर वायर भी ले सकते हैं इधर पे, बट ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट होना चाहिए. ठीक है. Then I am going to insert this into the solution of 1 molar H plus ion. और ये जैकेट के यहाँ से आप गैस बबल करोगे तो गैस इसके ऊपर से ऐसे घूमती हुई नीचे की तरफ जाएगी यहाँ पर. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन गैस. ये था आपका कंस्ट्रक्शन. Now what is the definition? अभी ध्यान से सुनो. The electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled at 1 atmospheric pressure around the platinized platinum plate, which is dipped inside the solution of 1 molar H plus ion, is called as standard hydrogen electrode. Now, what is the role of this platinized platinum plate? अगर मैं एक एकदम पतला सा वायर लेती हूँ, so this wire cannot absorb more amount of gas. Correct? Absorption पढ़ा है ना chapter. तो अगर surface area बड़ा होगा, तो absorption will also be more. So in order to increase the surface area, we have to use over here this plate. ठीक है? Yes, sir. So that more amount of gas will get absorbed over here. इतना समझा? मैं फिर से बोलती हूँ. What is standard hydrogen electrode? The electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled, है ना? At 1 atmospheric pressure around platinized platinum plate, which is dipped in 1 molar solution of H plus ion. It is called as standard hydrogen electrode. अब इसको represent कैसे करेंगे? Electrode representation. अभी आपको ऑलरेडी बताया था मैंने. When there is an electrode representation, single electrode होगा तो क्या बनाएंगे? Cathode. So it is Pt solid, then hydrogen, it is gas, 1 atmospheric pressure, it is in H plus 1 molar. Clear? ये हो गया electrode representation. कितना simple था? Understood everyone? चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? Reaction. Reaction कौन सा होगा? Reduction, half, reaction. 2H plus, 2 electron, hydrogen gas.
इसके आगे मैं क्या लिखूंगी, सॉरी स्टैंड हिल गया, एक मिनट। इसके आगे लिखेंगे E naught of H2 is equals to 0.00 volt, बराबर है? All are agreed with this? चलो हो गया। ये था आपका इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द एप्लीकेशन? कितना सिंपल है, देखो कुछ है ही नहीं। एप्लीकेशन क्या है? बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड you can find out, it is called as primary reference electrode first of all, है ना? So you can find out the potential of any electrode. अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया जिंक Zn2 plus sorry, this is 1 molar, it is H plus 1 molar, hydrogen gas 1 atm, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लैटिनम सॉलिड। तो ये कैसा एक्चुअली में, ये रहा आपका जिंक वाला और ये रहा आपका कौन सा, हाइड्रोजन। ऐसे सिंपल डायग्राम बना दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से। तो अभी ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू, कैथोड इज हाइड्रोजन, ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस ई नॉट ऑफ Zn। ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन तो 0 है, so ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट ऑफ Zn। समझा? So like this you can find out exactly the potential of your single electrode। यहाँ तक सबको समझा अच्छे से? यस मैम। अभी देखो बाद में क्या बोला है पता है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स उसमें दिए नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट तुम लोगों को पता आना चाहिए व्हाट इज द ड्रॉबैक। ये जो लिखा है ना डेफिनेशन, डेफिनेशन में ही गड़बड़ है। पहला ड्रॉबैक, पहला हम लोग का स्टेटमेंट कहता है प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज नॉट अवेलेबल। दूसरा क्या बोला था, इट इज बबल्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गैस भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना। मैं गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करूंगी तो गैस थोड़ी ना चुप बैठने वाली है, गैस विल आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर, करेक्ट? So to maintain the 1 atmospheric pressure, it is very difficult. Okay, it is dipped in 1 molar solution of H plus ion. So 1 molar solution का concentration change होता रहता है, क्यों? Because sometimes more amount of gas will bubble, sometimes less amount of gas will bubble. So because of that, concentration of H plus ions also keeps on changing. Its maintenance is very difficult. It is very costly. ठीक है? Not handy also. कहाँ पे लेके जाएंगे इसको उठा के? So all these are the drawbacks. समझा? इसके लिए हमने क्या बनाया? Secondary reference electrode. I hope everybody understood this. सबको समझा अच्छे से? यस। Any question in standard hydrogen electrode? देखो डायग्राम बनाने का, उसका डेफिनेशन लिखने का, ठीक है, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन तो तुम लोग को आता है, एप्लीकेशन एंड ड्रॉबैक हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। चलो, किसी को कुछ डाउट है? लिखो मत, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, फालतू में क्यों लिख के टाइम वेस्ट। इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, अच्छे से दिया हुआ है वो भी। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट। चाहिए तो सिर्फ डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। लिखोगे डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन लिखो यस। स्टैंडर्ड हाँ मैम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। हाँ हाँ, डेफिनेशन लिख लो, बाकी सब दिया हुआ है। द इलेक्ट्रोड इन विच, the electrode in which pure and dry hydrogen gas, pure and dry hydrogen gas is bubbled, B-U-B-B-L-E-D, bubbled at 1 atmospheric pressure, bubbled at 1 atmospheric pressure around platinized platinum plate, around platinized platinum plate
which is dipped in the solution of, which is dipped in the solution of 1 molar H plus ion. 1 molar H plus ion is called as standard hydrogen electrode. मुझे एक बार Is रिपीट called करना. as the electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled at 1 atmospheric pressure around platinized platinum plate, which is dipped inside the solution of 1 molar H plus ions. ठीक है. उसके बाद चाहिए तो खाली सीक्वेंस लिख के रखो कि आपको क्या क्या बनाना है. उसमें आपको बनाना है डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड एप्लीकेशन. ठीक है. एवरीथिंग इज गिवन ऑन पेज नंबर 108. याद रखो. डायग्राम, और डायग्राम के बाद डेफिनेशन लिख देना, नहीं तो डायग्राम के पहले डेफिनेशन लिख देना. डेफिनेशन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन एंड एप्लीकेशन. ये तो तुम लोग को एकदम अच्छे से आता है. ये भी बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं. ठीक है. हो गया. आई होप सबको समझा अच्छे से. अभी नेक्स्ट क्या बोला है, हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर दिया इसका, बट उन लोगों ने सिर्फ बताया है कि इफ, ठीक है, इफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट यूनिटी. कल किया था ना 1.8 एटमॉस्फेयर, याद है? मतलब इट वाज नॉट यूनिटी. तो कैसे लिखने का? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 गैस. तो कैसे लिखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन में E of the cell, suppose E of the hydrogen है लिख दिया. चलो, E of the hydrogen is equals to E naught of hydrogen minus 0.0592 upon n. n मतलब कितना है? 2 है ना इधर. log to the base 10. Pressure of hydrogen gas divided by concentration of H plus square. समझा? मतलब उनको ये बताना था कि when it is not unity you are supposed to mention this. So you have to write down. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. बोलो. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके ओके. नहीं, मेरा वो एक का इसका चार्ज खत्म हो गया. ठीक है. सो दिस इज पी, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. सो इफ इट इज 1 तो हम लोग 1 लिख देते थे, बट कल हमने क्या है 1.8, तो 1.8 इधर लिखना है, वो लिखना है. बस इतना ही दिया है, बाकी कुछ नहीं है. दे हैव जस्ट सेड यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन लाइक दिस. समझा? ये तो पता है ना तुम लोग को, नॉन इक्वेशन कैसे लिखते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो वो भी मत लिखो. चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. गैल्वानिक सेल, यूज ऑफ गैल्वानिक सेल इन आवर डे टू डे लाइफ. देखने तो क्या क्या है. प्राइमरी वोल्टाइक सेल, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? ड्राई सेल. ओके. लेट स्टोरेज बैटरी. ठीक है, चलो ड्राई सेल तक तो हो जाएगा आज आराम से. Ma'am, we don't have dry cell in our syllabus. एक्चुअली व्हाट हैपेंस यू नो, क्या तुम्हारा नाम है, मैं भूल गई. दिवेश. हाँ. व्हाट हैपेंस यू नो, दे विल टेल यू ये नहीं है वो नहीं है, बट नीट जेडब्ल्यू में दे विल आस्क यू एवरीथिंग. समझा? तो नीट जेडब्ल्यू के लिए तो पढ़ना. क्या क्या नहीं है बताओ जरा. ड्राई सेल नहीं है और Dry cell नहीं है और मेरी आवाज कम आ रही है क्या सबको? एम आई ऑडिबल नहीं, प्रॉपर्ली? बराबर आ रही है. बराबर है. हाँ. ऋषि चेक करो अपना कनेक्शन. हाँ बोलो दिवेश, बोलो क्या क्या है. ड्राई सेल इज नॉट देयर. व्हाट एल्स?
मैंने तो देखा भी नहीं क्या क्या निकाला उन लोगों ने बाहर। लीड एक्यूमुलेटर नहीं है। नहीं है, ओके, फिर तो क्या चैप्टर ही हो गया। ड्राई सेल एंड लेड एंड एक्यूमुलेटर फ्यूल नहीं है, सेल्स आर ओके। आल्सो नॉट, फ्यूल सेल इज आल्सो नॉट देयर। अच्छा, फ्यूल सेल इज आल्सो नॉट देयर, ओके। ये है मर्क्यूरी बैटरी, निकल कैडमियम, लिखा नहीं है, जितना डिलीटेड है ना उसका ही लिखा है। ओके ओके। मतलब निकल कैडमियम है, मर्क्यूरी बैटरी होगा, फ्यूल सेल नहीं है ना, ठीक है। फ्यूल सेल निकाल लेते हैं। अरे सब मेन मेन पार्ट निकाल दिया यार, क्या गधे लोग हैं। बट तुम लोग को नीट जेडब्ल्यू में सब पढ़ना पड़ेगा, नको ये तो देव कोविड रेंडी की वजह से, ये कोविड की वजह से निकाला है ना। चलो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं पढ़ाती, हे पण है ना। पाहिजे हिला ऍप पण टाकणार हा तिकडे बसला ऍप काढायचं संपले लाडू तुमचे यश बस झाले बस यश झालं खूप झाले यश यश शांति। चलो ठीक है, now we will study galvanic cells useful in our day-to-day life. So galvanic cells or voltaic cells have been classified into two types. First is called as primary voltaic cells और दूसरा क्या है, secondary voltaic cells, ठीक है। What are primary voltaic cells? In these cells, once the chemical, मतलब these are not rechargeable. You cannot recharge them. These are not rechargeable. Correct? So once the chemical has been consumed, chemical consumed हो गया तो you cannot get it back. ठीक है, cannot get it back. ठीक है। For example, watch की बैटरी रहती है ना, बैटरी ऑफ टॉर्चेस, बैटरी ऑफ वॉचेस, बैटरी ऑफ रिमोट कंट्रोल्स, है ना। एक बार यूज किया तो फेंकना पड़ता है, so that is called as क्या, not rechargeable. Primary voltaic cell, once you've used you have to just throw that, it is called as primary voltaic cells, ठीक है। What is secondary voltaic cells? These are rechargeable, you can recharge them, ठीक है। If the chemical is consumed you can get it back. So initially they will, अच्छा ठीक है चलो जाने दो, ये क्या हो गया, they are rechargeable, you will get the chemicals back and these are used in the mobile phones, ठीक है, generators, inverters, laptops, all these batteries are called as secondary voltaic cells. तो इसका एक्चुअली में एग्जांपल था ड्राई सेल और इसका एग्जांपल था लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, जो आपके सिलेबस में से निकाली दी है, तो आई एम नॉट टीचिंग दैट, बट अभी खाली इतना ध्यान में रखो कि व्हाट आर गैल्वेनिक सेल्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी इज these cells are not rechargeable, once the chemical has been consumed it cannot be regenerated, ठीक है। here secondary voltaic cells, these cells are rechargeable, chemicals can be regenerated by increasing the, by reversing the direction of the current, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद these are used in the torches, watches, remote controls, example is dry cell, and these are used in the mobile phones, generators, inverters, laptops, an example was lead accumulator battery। समझा, कितना समझा। अभी तुम लोग बोल रहे हो इसलिए आई एम नॉट टीचिंग ड्राई सेल एंड ऑल्सो आई एम नॉट टीचिंग लेड accumulator, मतलब 2 पेज पूरा स्किप हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पर, डायरेक्टली निकल कैडमियम और निकैड स्टोरेज, ठीक है। निकल कैडमियम और निकैड स्टोरेज। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिखाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं मत सिखाओ, क्या करूं मैं। मैम सिखा ही दो ना, फिर नीट में भी हो जाएगा फिर। तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना, लेकिन पढ़ोगे।
पढ़ो हाँ पूरी नीट में तरह तो से पढ़ना अगर पड़ेगा तुम्हें। ना। हाँ नीट में तो सभी पढ़ना है, सिखा दूँ? हाँ श्योर हाँ मैम, मैम। सिखा दो। फिर बाद में लेक्चर लेने से अच्छा अभी सिखा दो। हाँ वही ना, झंझट नहीं रहेगा। चलो ठीक है, ड्राई सेल पढ़ा देती हूँ। इजी है रे, बहुत इजी है, फालतू में निकाला ये, गधे लोग हैं, जो चीजें नहीं निकालनी चाहिए वो निकाल दिया। ड्राई सेल is also called as Leclanche cell. ठीक है? Why it is called as dry cell? Because whatever the electrolyte we are going to use is not in the liquid state, it is in the form of paste. ठीक है? इसके ये कौन से फॉर्म में रहता है? पेस्ट के फॉर्म में रहता है. That is what is called as dry cell. ठीक है? ये ध्यान में रखो. It is also called as Leclanche cell. It is a type of primary voltaic cell. ठीक है? It is a type of primary voltaic cell. मतलब you cannot recharge them. Now what is the construction? I will take here, अभी ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है. I will take here a container which is made up of zinc. I will make this as cathode. तो क्या बन गया ये? नेगेटिवली चार्ज्ड. मतलब मैंने कनेक्ट इसको किससे कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. ओ सॉरी, पॉजिटिव. एक मिनट, इसको एनोड बनाएंगे. आई एम सो सॉरी, इसको एनोड बनाएंगे. एनोड है ना अपना, ये गैल्वेनिक सेल है ना. एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज. दिस इज माय एनोड. ठीक है? अब इसके अंदर आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन कार्बन रॉड. ठीक है? दिस इज माय कार्बन रॉड. चलो इंसर्ट कर दिया. अभी ऊपर यहाँ पर कैप है जिससे इस कंटेनर को सील किया जाएगा. ठीक है? फिर इसके बीच में हम लोग क्या डालेंगे? पेपर स्पेसर. व्हाट इज पेपर स्पेसर? आप देखो कंपास बॉक्स में कैसे रखते हो पेपर, है ना. कंपास बॉक्स होता है तो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर पेपर रखते हैं. क्यों? ताकि नीचे तक नहीं जाए, टच नहीं हो जाए. तो वैसे आपने ये कंटेनर लिया, इसके अंदर पेपर लगा देने का. एंड देन यू हैव टू इंसर्ट योर कार्बन रॉड और ग्राफाइट रॉड. ठीक है? इट इज कॉल्ड एज, इट विल एक्ट एज अ कैथोड. तो C फॉर कार्बन, C फॉर कैथोड. ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? इसके ऊपर कोटिंग करेंगे. ठीक है? वी आर गोइंग टू कोट दिस, एकदम काला कलर का. वी हैव टू पुट ओवर हियर पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन. ठीक है? कौन सा पेस्ट लगा है उसके ऊपर? पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन. क्लियर? ये इतना कंस्ट्रक्शन समझा. पहले जिंक का बर्तन ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने पेपर स्पेसर डाला. जिंक will act as an anode. Then we have to insert here carbon rod, or you can also call it as graphite rod. You have to coat this with manganese dioxide and carbon. अब इसके अंदर we are going to fill up electrolyte, which is a paste of ammonium chloride NH4Cl and zinc chloride. बोलो कंस्ट्रक्शन समझा सबको? डायग्राम बहुत सिंपल है. You have to take a zinc container, make the zinc container as an anode. It will be connected to the negative terminal of the battery. Then put the paper spacer, insert the graphite electrode, which will act as a cathode. Then it is coated or covered with a paste of, किधर गया, manganese dioxide and carbon. ठीक है? The container has to be sealed by using brass cap. यहाँ पे brass cap से आप उसको सील कर सकते हो कंटेनर. एंड यू हैव टू फिल अप हियर अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड. दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट. इतना क्लियर? बोलो यहाँ तक सबको समझा कि नहीं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई सेल अभी समझा? बिकॉज हियर वी आर नॉट यूजिंग अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ पेस्ट. चलो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? वी विल डू हियर अ सेल रिएक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायग्राम तो टेक्स्ट बुक में से भी कर सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल रिएक्शन. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. हम लोग हमेशा रिडक्शन से लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों लिखा है बताती हूँ. ठीक है? ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का. जिंक solid is getting converted into Zn2 plus with the loss of 2 electrons. पहला रिएक्शन क्लियर है सबको? जिंक कैथोड एनोड था, आपने उसका रिएक्शन लिख डाला. ठीक है?
अब रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखो। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले जो मेरा अमोनियम आयन है, कहाँ से आएगा अमोनियम आयन? 2NH4 प्लस, कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना मैंने, अमोनियम क्लोराइड। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इट विल फॉर्म अमोनिया NH3 एंड हाइड्रोजन गैस। क्या जनरेट किया इसने इसके अंदर? अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस। अब जब हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी तो क्या नीचे बैठने वाली है? नहीं ना, इट विल गो इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ऊपर जाते जाते इट विल रिएक्ट विथ MnO2। तो ये जो हाइड्रोजन है इट विल रिएक्ट विथ MnO2, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। यू विल गेट ओवर हियर Mn2O3 प्लस वाटर। देखो अभी इसके अंदर वाटर आ गया, तो इसका जो लिक्विडिटी है वो ठीक रहता है। इसमें पता है हम लोग बैटरी को बार 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 चार्ज करते हैं, तो ये जो वाटर है वो उड़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी बैटरी फूक जाती है। हम लोग बोलते हैं ना बैटरी फूक गई। क्यों फूक गई? क्योंकि बार बार यहाँ पे से सील किया, तो वाटर बाहर नहीं निकल सकता, करेक्ट। सो इट विल मेक द लिक्विडिटी इनटू योर इलेक्ट्रोलाइट। बट इफ यू आर गोइंग टू चार्ज इट ऐसे बार बार, ये वाटर जो है वो उड़ जाएगा एंड आपकी बैटरी फुल जाएगी। तो ये दोनों का एडिशन विल बी योर रिडक्शन रिएक्शन, समझा? सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गेट्स कैंसिल्ड, you will get over here 2NH4 प्लस प्लस, ओ सॉरी क्या कहना, हाँ हाइड्रोजन कैंसिल होगा बराबर, फिर प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये खत्म हो गया ये साइड। नाउ वी विल गो हियर which is NH3 plus Mn2O3 plus H2O liquid। ये है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सबको समझा? अमोनियम आयन combines with electron, forms ammonia and hydrogen. Hydrogen will go in the upward direction and reacts with manganese dioxide and gives water. तो ये water का मीनिंग काम क्या है? It will maintain the neutrality, sorry liquidity। हो गया ये और ये कैंसिल हो गया ये। अब क्या करेंगे? सेल रिएक्शन, एडिशन ऑफ दिस एंड एडिशन ऑफ दिस। समझ रहे कि नहीं बच्चों? यस मैम समझा। इजी है, हाँ एकदम इजी है, कुछ है नहीं, खाली ध्यान रखने का कि कैसे हुआ रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज माय सेल रिएक्शन नाउ? माय सेल रिएक्शन विल बी, आई विल राइट डाउन हियर, Zn solid gives you Zn2 plus 2 electrons। और ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन फाइनल क्या था इसका? इट वाज 2NH4 प्लस 2MnO2 plus 2 electrons। It will give you Mn2O3 plus 2 ammonia plus water, ठीक है। इट इज इन द लिक्विड स्टेट। अब क्या होगा जब आप ये कैंसिल करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल्ड एंड यू विल गेट ओवर हियर Zn solid plus 2NH4 plus 2MnO2, फिर Mn2O3 plus 2 ammonia plus water। समझा? This is about the dry cell। Easy था net cell reaction। I hope you all understood। यस मैम। हाँ ये था आपका dry cell। What is the use of dry cell? It is a source of power in the flashlights, portable radios, tape recorders, clocks and so forth। हाँ का यूज होता है, मैंने बताया ना, वॉचेस जो यूज करते हैं और फेंक देते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ दैट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ठीक है, लिख लो, ये सिर्फ रिएक्शन लिख लो। डू नॉट राइट डाउन दिस डायग्राम, just write down the reaction। Can you see this properly? एक मिनट है जरा, ये बताई देती है। अभी आधे लोगों को लग रहा होगा है ही नहीं सिलेबस में तो क्यों लिखे, बट यू डोंट नो आवर गवर्नमेंट। मैम क्लोरीन का क्या हुआ फिर? कौन सा? NH4Cl को तोड़ा ना, हाँ, तो तो Cl क्लोरीन। माइनस उसके सोल्यूशन के अंदर ही रह जाता है।
It will अच्छा remain in the solution. ठीक है, और देखो ना अमोनिया बन गया, अमोनिया will back react with Cl, so again it will form ammonium chloride. तो solution हमारा बाहर निकल ही नहीं रहा है ना, it is there inside the cell only. समझा? ओके। And water will maintain its liquidity. दिख रहा है ठीक से, लिख सकते हो। मैम सिर्फ ऊपर रिएक्शन वाला लिखो। जो हाँ, लिख लेते हैं ना, क्या क्या? इसके पहले जो एग्जांपल दिया, इसके पहले क्या? इसके पहले एक और बैटरी था ना आपने? क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ रहा ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं ये? मैम ये ड्राई सेल के पहले एक और सेल सिखाया था आपने, प्राइमरी वोल्टेज सेल का। ड्राई सेल के पहले एक और सेल सिखाने का है, किधर है? नहीं नहीं, वो डिफरेंशिएशन था। जो डिफरेंशिएशन लिखने का है, ओके ओके, लिख लो। इफ यू वांट टू राइट डाउन दैट यू कैन राइट डाउन दैट आल्सो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको समझ में आए अच्छे से, बस इसलिए मैं एकदम ऐसे शॉर्ट में देती हूँ। लिख लो इफ यू वांट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। बहुत सारे लोगों ने तो लीव ही कर दिया, क्यों पता नहीं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, एंड यू हैव टू स्टडी फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। कौन सा भी एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, उसमें ये आता है। हो गया ये लिख के? समझेगा ही नहीं मैंने क्या लिखा है। हाँ, डायग्राम मत बनाओ इसका, बट यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। ये देखो, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये रिडक्शन रिएक्शन है, समझा? और बाद में इन दोनों को ऐड करके सेल रिएक्शन। यूजेस वगैरह तो तुम लोग खुद से ही लिख सकते हो, जस्ट कॉपी डाउन द सेल रिएक्शन बस। हो जाएगा तो डन बोलो। हाँ, ओके, डन दिस पेज। एडिशन रिएक्शन लिख दो, डन। टर्न करो पेज। मैम वेट। ओके ओके।
मैम हो गया हो टर्न गया 2। दिवेश? यस मैम। ओके ओके, एक मिनट। ये बुक खत्म हो गई, पेपर पे बहुत कंटाला आता है लिखने में, 100 बार चेंज करना पड़ता है। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन तो तुम लोग खुद ही लिख सकते हो, ऐड करके लिखो बुक में से देख के तुम्हारे ही। मुझे किसी ने कुछ तो भेजा है, वेट। मिस वो ड्राई ड्यूरासेल, हाँ यस यस, ड्यूरासेल इज आल्सो ड्राई सेल, करेक्ट, बराबर है यश। जो भी बैटरीज हम लोग फेंक देते हैं ना यूज करके, इट इज अ ड्राई सेल। चलो हो गया ना सबका? नाउ वी विल गो फॉर secondary voltaic cell. Example is lead storage battery. ये भी बहुत सिंपल है, खाली देख के लगता है रिएक्शन कितना सारा, बट इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, these cells are rechargeable, so initially they will act as voltaic cell, correct? Initially they will act as voltaic cell, ये इनकी खास बात है, ठीक है, स्पेशल थिंग। voltaic cell मतलब एनोड विल बी नेगेटिवली चार्ज, कैथोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ऑन रिचार्जिंग, क्योंकि वोल्टाइक सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट ऑन रिचार्जिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी बैक ना। तो ये क्या बन गया, ऑन रिचार्जिंग इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। आई बात समझ में? Understood? Initially, we are using the chemical to generate the electricity, but when you are going to recharge it, you are going to get your chemicals back. Means again, you are converting electrical energy into the chemical energy. So they will act as an electrolytic cells. ठीक है? अब इसका डायग्राम और कंस्ट्रक्शन तो ऊपर वाले से भी इजी है। You have to take a acid proof glass container. एसिड प्रूफ क्यों लेना है, क्योंकि हम लोगों को उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरना है। ठीक है, then after that I am going to take here so many ऐसे lead plates। ठीक है, और कैसे लेने हैं वो, पेयर्स में लेने हैं, मतलब
4, 6, 8, 10 ऐसे लेने हैं। आप 2 नहीं ले सकते, सिर्फ मिनिमम 4 से स्टार्ट करना है। तो हमने कितने ले लिए? 6। ठीक है, नाउ यू कैन सी। ठीक है, ये जो ऑल्टरनेट वाले, इसको डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेट वालों को, एक कम हो गया ना, 1 2 3 4 5 हो गया, सॉरी एक और बना देती हूँ इधर। ठीक है, these alternate dark one I am going to considered as these are lead plates coated with lead dioxide। और ये ब्लैक वालों को, ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, इसको मैं बनाऊंगी कैथोड। कैथोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज, समझा? ठीक है, देन ये जो व्हाइट वाले ऑल्टरनेट व्हाइट वाले, these are purely lead plates and I am going to make them as anode which is negatively charged। इतना समझा? Alternate plates which are coated with lead dioxide is made as cathode and the alternate plates which are white one are called as anode। इसके अंदर भरेंगे electrolyte solution which is 38% H2SO4। हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। कितना सिंपल था कंस्ट्रक्शन। चलो अब क्या लिखेंगे इसका सेल नोटेशन। देखो एनोड से शुरू करती हूँ। एनोड क्या है? पीबी ना, ये देखो पीबी कहाँ गया? पीबी लेड प्लेट्स। ठीक है, इज इन कॉन्टैक्ट विथ लेड सल्फेट। कहाँ से आया लेड सल्फेट? कोई बताएगा मुझे? लेड सल्फेट तो डाला ही नहीं, आया किधर से? वो 38% H2SO4। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। आई एम यूजिंग ओवर हियर 38% H2SO4। तो ये दोनों भी लेड प्लेट है ना, कैथोड भी लेड है, एनोड भी lead है, right? So these two are reacting with this sulfuric acid and forms lead sulfate। उसके बाद it is in contact with 38% H2SO4। फिर वापस से आ जाएगा lead sulfate and it will form PbO2 and Pb solid। देखो ना, कैथोड क्या था? lead plates था, उसको कोट किसके साथ किया था? PbO2। तो lead plates are coated with PbO2, it is also in PbSO4। ये आपका मेन सोल्यूशन है। और एनोड क्या था? प्योरली लेड प्लेट्स था which is dipped in PbSO4। ये हो गया आपका सेल नोटेशन। सब जगह सिंगल सिंगल लाइन है because everything is contact with each other। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है आपका सेल रिएक्शन। ठीक है, so I will write down here oxidation half reaction। oxidation लेफ्ट हैंड साइड का होएगा बराबर। I will write down here lead solid is getting converted into Pb2 plus 2 electrons। लेकिन ये जो Pb2 plus है, it will react with sulfate of sulfuric acid and form PbSO4। इन दोनों को मिलाकर you will get your cathode reaction। तो कैंसिल क्या होगा यहाँ से? सिर्फ Pb2 plus कैंसिल हो जाएगा, Pb solid plus SO4 2 minus PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाला। ये समझा? इतना समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो। इज इट यस क्लियर? मैम समझा। यस। हाँ, यस। चलो अब जाएंगे क्या? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ बहुत सिंपल है, हाँ एकदम सिंपल है। क्यों निकाला है मुझे समझो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी रिडक्शन किसका? PbO2 का ना। तो PbO2 क्या करेगा? देखो, PbO2 will take 4H plus ions। किधर से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड के पास से। it will take 2 electrons from Pb2 plus water। अब ये Pb2 plus वापस से क्या करता है? सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म PbSO4। ठीक है, अगेन इन दोनों का एडिशन is your reduction half reaction। तो यही कैंसिल होगा सिर्फ। you will get over here PbO2 plus 4H plus SO4 2 minus plus 2 electrons, then PbSO4 plus 2H2O। इतना समझा? This is your
reduction half reaction. Is it clear? PbO2 H plus आ गया कहाँ से? सल्फ्यूरिक एसिड से. Pb2 plus वापस से ये बनाएगा. Clear इतना? Now we will write down the cell reaction. What will be the net cell reaction? पीछे लिखती हूँ. देखो सेल रिएक्शन में वापस से लिखती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए. ऑक्सीडेशन वाला क्या था रिएक्शन अपना? जस्ट लेट मी सी. ऑक्सीडेशन वाला था Pb सॉलिड हो जाएगा भी वो, ठीक है, ब्लर हो रहा है. SO4 2 माइनस, फिर क्या था? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये ऑक्सीडेशन था. और रिडक्शन क्या था अपना? PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 minus plus 2 electrons will give you PbSO4 plus 2 water. ठीक है, चलो इनको ऐड करो. क्या कैंसिल होएगा? इलेक्ट्रॉन्स और कुछ कैंसिल होएगा? बोलो. No, ma'am. No. So I will write down here Pb solid plus PbO2 plus 4H plus ये देखो ध्यान से, दोनों एक ही साइड पर है. 2SO4 2 माइनस. ठीक है, ये भी दोनों एक साइड पे है. 2 PbSO4 प्लस वाटर. ये देखो ध्यान से, क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4. दिखा सबको? यस ट्वाइस ऑफ हाँ H2SO4 है, मतलब मेरा हाँ केमिकल कंज्यूम हो गया यहाँ पे. समझा? मैंने क्या किया अभी? ये केमिकल कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर डाली. इतना समझा? अब हम क्या करेंगे? ऑन रिचार्जिंग, अब हम रिचार्ज करेंगे. रिचार्ज करेंगे मतलब वापस से गए और सॉकेट पे लगा दिया. एक सेकेंड ना मेरा. ऑन रिचार्जिंग. अभी यहाँ पर जो है ना बच्चों, मेरा एनोड जो है इट विल एक्ट एज पॉजिटिवली चार्ज. और इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? बोलो अभी. ऑक्सीडेशन क्या लिखेंगे? रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. ऊपर का ऑक्सीडेशन विल बिकम रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, है ना? उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी नहीं कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन. इन दोनों में से रिडक्शन कौन सा था? ये वाला. इसका रिवर्स लिखेंगे मतलब उल्टा. देखो मैं कैसे लिख रही हूँ. PbSO4 ये वाले लाइन का उल्टा लिख रही हूँ. रिवर्स मतलब यहाँ से प्लस 2H2O gives you PbO2 plus 4H plus SO4 2 minus plus 2 electrons. क्लियर? और कैथोड क्या बन जाएगा अभी? कैथोड will be negatively charged and reduction reaction will be reverse of oxidation reaction. समझा? तो ये मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, उसको रिवर्स करो. इट विल फॉर्म PbSO4 plus 2 electrons will give you Pb solid plus SO4 2 minus. अभी सेल रिएक्शन लिखो. क्या कैंसिल होएगा? दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन. ये 1 and 1 2 हो गया. क्या हो जाएगा? 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर बचा इधर पे. फिर क्या मिला मुझे? PbO2 प्लस Pb solid प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस. ये देखो रीजनरेट हो गया. ये यहाँ पे रिएक्टेंट में था, ये यहाँ पे प्रोडक्ट में आया. हो गया ना रीजनरेट, मतलब मेरा सेल रिचार्ज हो गया. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ योर सेल रिएक्ट्स.
इट इज यूज्ड इन द डायरेक्ट करंट इन द लेबोरेटरी, ठीक है। और जो 12 ऐसे रहेंगे ना बैटरी, तो इट इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स, ऐसे जैसे हम लोगों ने ऊपर लिया था ना, 6 लिया था, वैसे अगर 12 कनेक्ट करोगे तो इट कैन बी यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स एंड द इन्वर्टर्स आल्सो। आया समझ में रिचार्जिंग वाला पार्ट? यस और नो? Yes. वाज इट वेरी सिंपल? एकदम सिंपल था, देखो कुछ नहीं था, खाली एक ही बार रिएक्शन याद करने का। चलो हो गया। ऑक्सीडेशन रिवर्स ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, रिचार्ज करने पर, बिकॉज उल्टा हो जाता है ना, एनोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर यू कैन सी केमिकल हैज बीन कंज्यूम्ड और यहाँ पर केमिकल हैज बीन फॉर्म्ड, वापस से जनरेट हो गया। ठीक है, लिखना है रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शन लिखो, सेल कंस्ट्रक्शन और रिएक्शन लिखो, बस इतना ही। लिखना है ना बच्चों कि नहीं लिखना है? लिखना है। लिखना है मैम, लिखना है। ठीक है, हाँ ठीक है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम लोग को ऐसे नहीं लग रहा है मैं जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोग को ठीक लगे तो लिखो, नहीं ठीक लग रहा है तो मैं आगे सिखाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लो। कितना, ये देखो, ये वाला जो मैंने मार्क किया ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन है, दिखेगा ना ठीक से, PbSO4 और ये वाटर है 2H2O। और इसका डायग्राम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर बताती हूँ, रुको, 111 पे। प्लीज लेट मी नो वंस यू आर डन। हाँ बच्चों, ओके सबका हो गया, टर्न करूँ पेज? वेट मैम। ओके, दिवेश डन? यस। ओके, एक सेकेंड। तुम लोग खुद ही ऐड कर सकते हो, ये भी पीछे लिखा है ना, जस्ट सी दैट एंड ऐड। ऊपर नहीं पकड़ रही हो, चलेगा ना? यू कैन ऐड इट ना बच्चों।
मैम ऊपर करो ना। हो गया ना। सबका हो गया? यस मैम। ओके, इजी था एकदम। यूज इट एप्लीकेशन तुम लोग टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो। Now we will do next part, NICAD, nickel cadmium. चलो निकल कैडमियम पढ़ेंगे अभी। निकल कैडमियम और मर्क्यूरी तो हो जाएगा शायद से। फ्यूल सेल पे मैं पढ़ा ही दूंगी हाँ तुम लोग को, फालतू में नहीं रखते। नहीं पूछना है उनको मत पूछना, तो अपन अपना काम कर देंगे पढ़ के। चलो नेक्स्ट वी विल डू हियर निकल कैडमियम बैटरी। सुना है कभी निकल कैडमियम बैटरी? सुना है क्या? It वेल is also called as NICAD battery. ठीक है, it is secondary dry cell. Lagrange क्या था? Primary dry cell. This is secondary dry cell. It is a dry cell which can be recharged. देखो ये इसका स्पेशलिटी है। It is a dry cell, जैसे अपना पहले वाला ड्राई सेल था, बट दिस इज द सेकेंडरी ड्राई सेल विच कैन बी रिचार्ज। बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू टेक ओवर योर एनोड। एनोड क्या बनाएंगे हम लोग इसमें? एनोड विल बी कैडमियम मेटल, ठीक है। एंड व्हाट इज योर कैथोड? कैथोड विल बी ओवर योर nickel oxide, NiO2 sorry, nickel oxide which is supported on nickel। मतलब निकल का रॉड लेने का, उसके ऊपर NiO2 का कोटिंग कर देने का, बस समझा। सो एनोड है मतलब इट इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड है मतलब इट इज पॉजिटिवली चार्ज, बराबर। नाउ वी विल राइट डाउन द सेल रिएक्शन। तो अभी मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही लिख देती हूँ पहले। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? कैडमियम का, बराबर। सो आई विल राइट डाउन हियर। और ये जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, सॉरी मैं इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिख दी, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ। इलेक्ट्रोलाइट will be your
बेसिक सोल्यूशन। तो इन शॉर्ट अपना सेल कैसा है पता है क्या? ये देखो, ये ऐसा है, इसके अंदर दो मेटल्स है, एक है आपका कैडमियम मेटल, एक है आपका निकल मेटल, उसके ऊपर NiO2 डाला है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बेसिक सोल्यूशन ले लिया, ऐसा मेरा सेल है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? कैडमियम का। देखो, कैडमियम प्लस 2OH माइनस। OH माइनस किधर से आया? बिकॉज माई इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिक इन नेचर, इट विल फॉर्म कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मत लिख देना, नहीं तो ये लिख देंगे, डायग्राम में मत ड्रॉ करो। नेक्स्ट वी विल डू रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन किसका होगा? NiO2 का। NiO2 combines with water and 2 electrons form nickel hydroxide, NiOH twice plus 2OH minus। चलो, सेल रिएक्शन क्या कैंसिल होएगा? बोलो, ये 2OH माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। व्हाट इज द सेल रिएक्शन? CD प्लस NiO2 प्लस वाटर, ठीक है, फिर CdOH ट्वाइस प्लस NiOH ट्वाइस। समझा? This cell this can be recharged and it produces a potential of 1.4 volt, जो काफी होता है, ठीक है। The cell has a longer life than the dry cell, जो dry cell का भी बोला ना, you can compare it with this, so it has a longer life. It is used in the electronic calculators, scientific calculators, electronic calculators होते हैं ना, लंबे चलते हैं ना, electronic watches, कैलकुलेटर्स, आईफोन का वगैरह जो बैटरी होता है, इसको आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। कैलकुलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स जिसका बैटरी अपने को लंबा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज निकल कैडमियम सेल। इजी है? से रिचार्जेबल होता है ना? यस यस, इट इज रिचार्जेबल। इट इज अ काइंड ऑफ ड्राई सेल बट यू कैन रिचार्ज देम। अंडरस्टूड बच्चों? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, पता है, निकल कैडमियम। समझा सबको रिएक्शन एंड एवरीथिंग? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? हेलो, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यस। ये तो है सिलेबस, चलो लिख लो इतना। चाहिए तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं बना दिया है उसमें, बट नहीं बनाओ तो भी चलेगा, दिया ही नहीं है, डायग्राम है ही नहीं। तो बस ये याद रखो कि योर इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिक, एनोड इज कैडमियम मेटल एंड कैथोड इज निकल व्हिच इज सपोर्टेड ऑन निकल, निकल ऑक्साइड सपोर्टेड ऑन निकल। और बाद में रिएक्शंस लिख लो, पहले ऊपर का लिख लो। ओके, ये पार्ट डन। अभी ये रिएक्शंस, कैन यू सी दिस प्रॉपर्ली बच्चों? और रिएक्शन के प्रैक्टिस करना, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है।
हो गया बच्चों? निकल कैडमियम, यस और नो? ओके, टर्न करूँ पेज, नया सिखाती हूँ, मर्क्यूरी सिखा देती हूँ, देन वी विल स्टॉप। फ्यूल सेल कल करेंगे। एक सेकंड ना। Okay, now the next thing we will do here is mercury's battery. It is also a secondary dry cell which can be recharged. So it is rechargeable. क्या लिखा मैंने शी? Rechargeable. Correct? अभी इसमें anode will be made up of zinc metal, ठीक है, and mercury. तो क्या बन जाता है पता है? ये zinc amalgam, पता है सबको? When any metal combines with mercury forms amalgam, ठीक है? And cathode is the paste of mercury and carbon. Paste of mercury plus carbon, ठीक है? And what is your electrolyte? Electrolyte is very strong alkaline. बहुत strong base लेना पड़ेगा इधर पे, ठीक है? So we will take over your strong alkali as a paste. तो क्या बनाते लेते हैं इधर पे? We will take a paste of KOH plus zinc oxide. इतना समझा? एनोड क्या है मेरा? जिंक मेटल विथ मर्क्यूरी, उसको बोलेंगे जिंक अमालगम, ठीक है? देन दिस इज पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी प्लस कार्बन, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट इज द सेल रिएक्शन? आई विल राइट डाउन योर ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन. चलो, जिंक अमालगम है ना, ऐसे लिखेंगे ना, जिंक एंड मर्क्यूरी combines with 2OH minus. किधर से है OH minus? अल्कली था मेरे पास. It will form zinc oxide plus water plus 2 electrons. ठीक है, ये आपका oxidation reaction. Then I will write down here reduction, half reaction. इसमें mercurous oxide यहाँ से आ जाएगा ना, किधर गया? Reduction mercurous वाला किधर गया? ये, ठीक है? Plus water plus 2 electrons gives you mercury in the liquid state and 2OH minus. चलो, क्या कैंसिल हो जाएगा? वाटर वाटर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 2OH माइनस 2OH माइनस, सब कैंसिल हो गया. क्या बचा? जिंक एंड मर्क्यूरी प्लस HgO, ठीक है? जिंक ऑक्साइड प्लस मर्क्यूरी. समझा सेल रिएक्शन? इसका भी जो बैटरी है, इट इज हैविंग अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इट विल गिव यू 1.35 वोल्टेज, ठीक है? इट हैज अ वेरी गुड कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ देन दी लेक्लैंश सेल. ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स. वो कान में लगाते हैं ना, जो भी माइक्रो अपना क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन एंड ऑल दैट, या फिर जिनको कान में प्रॉब्लम होता है उसके लिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस एंड ऑल्सो इन दी पेस मेकर्स. समझा? दीज आर द यूजेस. अंडरस्टूड हार्ट में एवरीबॉडी? होता है ना पेस, हार्ट के क्या लिए क्या होता है पेस मेकर. समझा नहीं मुझे, क्या बोल रही हूँ? नहीं, वो अलग होता है. वो पेस मेकर में पेस मेकर क्या? नहीं समझा. नहीं, एक मिनट में चेक करती हूँ, रुको.
वो पेस मेकर ये हार्ट पे लगाते हैं ना, बैटरी छोटा सा, वो है ये। हाँ वही है। हाँ वही है, बराबर। चलो लिखो इतना एंड देन आपकी छुट्टी, फटाफट लिखो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। कुछ डाउट है किसी को बच्चों? ये स्टैंड भी एकदम चढ़ा हुआ हो गया है, मिलता ही रहता है पूरा टाइम। देखो पहले ना इधर तक लिखो, फिर मैं कैमरा नीचे करती हूँ, ठीक है? तब तक कैसे पकड़ के रखती हूँ, क्या करें अभी। मिस थोड़ा कैमरा ऊपर करिए। यस देवेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट रिएक्शन थोड़े लर्न करने पड़ेंगे। अभी जैसे ये वाले रिएक्शंस हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक जैसा तो है नहीं, तो यू हैव टू लर्न सम रिएक्शन, बराबर। 2-3 बार लिख दोगे ना, याद हो जाएगा। बुक में 2-3 बार लिख दो बिना देखे। आई होप आपको समझ रहा है बच्चों, ऐसे ऊपर से नहीं जा रहा। टुमारो मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ lectures will be there, ठीक है? तो tomorrow we will do fuel cell इंशाल्लाह, and then और क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे कल। और क्या बच्चा अपना, अरे वाह, होने को आया चैप्टर। हाँ कल हो सकता है चैप्टर, अभी थियोरी तो कुछ बची नहीं है। एक फ्यूल सेल बचा है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बचा है। यस, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे हो जाएगा, कल अपना हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है? अच्छा हुआ ना तुम लोग का रोज रोज लेक्चर है, कितना सारा चैप्टर हो गया, 4 बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए। देन आई विल स्टार्ट विथ केमिकल काइनेटिक्स।
Okay, done everybody? I hope you all enjoyed today's lecture. अलग अलग सेल पढ़ा आपने. ओके चलो अभी कल अभी नहीं, तुम लोग को न्यूमेरिकल्स का टेंशन ही नहीं है, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं है. कल मैं सिखा दूंगी फ्यूल सेल और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कल शाम तक अपना चैप्टर हो जाएगा. फिर तुम लोग को कुछ डाउट रहेगा तो थोड़ा पढ़ लो चैप्टर. यू कैन आस्क टुमारो. एंड परसों से वी विल स्टार्ट विद केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है. आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर नाउ. चलो बाय बाय. टेक केयर एवरीवन. यस यस बाय बाय.